Good morning students. Today we are starting question 5th of 15.1. Here use the table to draw linear graph. With this table we have to draw line graph. The number of days a hill received snowfall in different years. Means in 2003 8 days snowfall was there, in 2004 10, and so on. So how you will draw graph? Take a graph paper like I have taken. Okay, now these are small 10 small divisions. This is horizontal line x-axis and this is y-axis. I have used pen, but you have to use pencil only. Okay, now on x-axis I have shown the years 2003, 4, 5, 2006. See what this zigzag represent? This is a king. हमने थोड़ा सा, हमें जो डेज थे वो क्या थे, 5, 8, मिनिमम 5 ही थे, तो बहुत ऊपर चला जाता ग्राफ, तो हमने यहाँ किंग ले लिया. इसका मतलब होता है कि यहाँ से डायरेक्ट हम सीधा 3 पे आए. लेकिन नाउ द स्केल शुड बी यूनिफॉर्म. 10 स्मॉल डिवीजन, ये जो बड़ा बॉक्स है 10 स्मॉल डिवीजन एक यूनिट के बराबर है. इज इट क्लियर? स्केल कैसे लिखते हैं? दिस यू नो इन स्टडीड इन योर 7th class also, that 10 small division is equal to 1 unit. This is the scale. Now what you will do? See, in this way you will make a graph. 2003 on y-axis you are showing number of days snow received in year, and on x-axis years. Now 2003 8, जहाँ पे 3 और 8 मिले इस पॉइंट को लेंगे. 2004 में 10 हो गई, ऐसे यहाँ से स्केल लिया और 10 से वेयर दे विल मीट, ये पॉइंट हमारा हो गया. इस तरह 2005 में 5 days and 2006 12 days, and then you will join the points with the help of scale. Now B part, population in thousand of men and women in a village in different years. These are the years, and number of men means 12,000, and number of women also are given in thousand. We have to draw a double line graph. Okay, now again taking graph paper, first mention what scale you are taking. You are taking 10 small division. ये पूरा एक बॉक्स कितने डिवीजन होते हैं छोटे? 10. तो 10 स्मॉल डिविजन्स जो हैं हम एक यूनिट के मान रहे हैं. अब हमारी जो पॉपुलेशन है अगेन वो 11, 13 ये रेंज आ रही है, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे किंक ले लिया डायरेक्ट 8. फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म चलते हैं. किंक मीन्स यहाँ तक हमने ग्राफ को जो है एक वायर सपोज है तो मोड़ लिया हमने इसको, डायरेक्ट 8 आ गया. फिर यूनिफॉर्म ही चलना होता है. 8 के बाद 9, ये नहीं कि 9 के बाद 11 ले लें. पूरे जो 10 डिवीजन है वो एक यूनिट ही है. Now what is y-axis showing? Population in thousand. It is necessary to write this, and these are on x-axis years 2003, 4, 5, 6. The straight line is showing the men and this dotted is showing women. You may use even different colors also, you may use. Okay, so now you can easily represent. Again I am showing 2003 men were 12,000. So how will you find the point? 2003 vertical and 12,000. So this way, so where these two points will meet coincide, so that point you will take. In 2004 this, it is this way and this way, wherever they will meet. So the point was given to be 12.5. So between 12 and 13 you will get 12.5. Then again 13, 2005 13. So 2005 आप यहाँ से वर्टिकली और 13 से हॉरिजॉन्टल, तो जहाँ ये मिले
यहाँ 13, इस तरह से प्लॉट करते हैं। ऐसे ही विमेन का फिर एक बार प्लॉट कर दिया, स्केल से ज्वाइन करो। नाउ टेकिंग विमेन, नाउ इन 2003 विमेन बर 11.3, सो 11 1 2, ये जो छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन है 3, तो 2003 और 11.3 काउंट करके यहाँ 2004 इट वाज 11.9 एंड 2005 was 13, so 13 जो है कंसाइड कर गया। इज इट क्लियर? इन दिस वे यू विल ड्रॉ योर ग्राफ। Question 4th, 6th, a courier person cycles from town to neighboring urban area to deliver a parcel to a merchant. एक कोरियर वाला है, वो कहाँ एक जगह से दूसरी अर्बन एरिया में जा रहा है। His distance from the town at different time is shown by following graph. यहाँ पे टाइम है 8 AM, उसने कितना स्टार्ट किया, 9 AM कितनी दूरी पे पहुंचा। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, जैसे 9 और यहाँ से हमने लिया 10, तो 9 AM कितने, 1 घंटे बाद वो कितना डिस्टेंस चला उसने, 10 किलोमीटर्स, लाइक 10 AM। नाउ सी 10 एंड कम दिस वे 16, तो 10 AM वो कितने किलोमीटर्स चल चुका था, 16 किलोमीटर्स। फिर 10 से 11, देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट वहीं का वहीं है, तो मीन्स में से कि उसने रेस्ट ले लिया होगा। 10:30 तक जो है बिल्कुल बीच का जो टाइम है 10 और 11 के, 10:30 पे वो वहीं पे ही था, 16 किलोमीटर, जो शो करता है कि इसने ज़रूर यहाँ पे रेस्ट ले लिया, मतलब आगे साइकिलिंग नहीं की। फिर 11 AM आगे बढ़ा और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे काउंट 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर्स जो हैं वो कितने के बराबर है, 1 आवर, तो यू मे राइट 4 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। Now, how much time? It's this 11 और 12 के बीच का टाइम पे ये ख़त्म हो रहा है, तो 11:30 और शुरू कितने बजे किया था उसने साइकिलिंग, 8 to 9, 1 2 3 एंड हाफ 30 मिनट्स मोर, सो यू विल राइट कितने देर उसने साइकिलिंग की, 3 hours 30 minutes। इज इट क्लियर? हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब यहाँ से मर्चेंट था, यहाँ तक गया, और ये क्या है, 22 किलोमीटर्स, कितनी दूरी पे है, 22 किलोमीटर्स। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। यहाँ पे स्टॉप बताया था ना, सेम ही है, क्योंकि द टाइम इज नॉट, द डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग। यस, how you came to know that he stopped? Because from 10 AM to 10:30 there is no change in distance. Time आगे बढ़ रहा है, there is change in time, but the distance is stagnant, which shows that he took a rest. He is not riding a cycle. During which period did he ride fastest? अब ग्राफ से ही सीधा देखो, किस में ये एकदम से स्टीप किया, यहाँ पे 10 - 2, यहाँ पे 0, 10 किलोमीटर्स चला 1 घंटे में। फिर इसकी स्पीड देखो थोड़ी थोड़ी, 16 - 10 6 किलोमीटर, यहाँ स्टेगनेंट। और यहाँ से अगर आप देखो 22 - 16, तो फास्टेस्ट इसकी स्पीड कहाँ है, 8 to 9, तो between E part, between 8 AM to 9 AM his speed was fastest. Is it clear? Now, very interesting question. There are 4 different types of time temperature graph, and you have to justify.
कैन दिस बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ? सी बेटा, ये टाइम बढ़ रहा है और साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी, जैसे मैं ये टाइम लूँ तो टेम्परेचर थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, फिर इस टाइम पे यहाँ तक आ गया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इज दिस अ ग्राफ पॉसिबल? यस. व्हाई? बिकॉज विद चेंज इन टाइम, what we will write? Yes. Part A. Yes. Why? Time temperature graph is time temperature graph is possible. Why? Justify your answer. Because with change in time temperature is increasing. For example, during daytime in summer, जैसे समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से टाइम के साथ साथ टेम्परेचर क्या है, बढ़ता चला जाता है. नाउ इन सेकेंड पार्ट, चेंज हो रहा है टाइम, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सपोज करो ये टाइम है 8 AM, टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, कम होता चला जा रहा है. इज इट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ? यस, बिकॉज विथ चेंज इन टाइम टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. टाइम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. हमने एक एग्जाम्पल दिया, ड्यूरिंग नाइट इन विंटर्स. विंटर में आप देखते हो, सर्दियों में जैसे जैसे और रात होती जाती है तो ठंड बढ़ती जाती है, जैसे आजकल बढ़ रही है ना. नाउ सी थर्ड पार्ट, यहाँ पे क्या है, टाइम एक ही टाइम है और टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. सपोज करो हमने ये लिया 8 AM है, 8 AM हमने आपका टेम्परेचर नापा और एकदम से अभी आपका यहाँ पे सपोज इट इज नॉर्मल टेम्परेचर, यू आर नॉट हैविंग फीवर, और एकदम से ही शूट अप हो गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल. कि चेंज टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, टाइम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, लेकिन विदाउट चेंज इन टाइम टेम्परेचर कांट शूट अप टू सच अ लेवल. So what we will write? No, this is not time temperature graph because temperature is changing without any change of time, which is impossible. Now fourth one, time change होता चला जा रहा है, टेम्परेचर वही है. सपोज करो मैंने कहा 10, 20, 30, 40 है ये, तो 40 टाइम चेंज हो रहा है, 8, 9 AM, 10 AM, टेम्परेचर वही है. तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो ये हो सकता है कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर एक मेंटेन्ड है. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. यस, बिकॉज temperature may be constant with change in time. So just you have to give the answer in such a way. That's all for today. So you will complete 15.1. Thank you.